Hello everyone and welcome to the part 2 of this video series on trigonometric equations. इस वीडियो में हम सीखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स और इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे. As usual the questions are taken from Maharashtra government textbook Mathematics part 1 12th standard. So let's begin. पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए तू वापस तेरा xy कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन कर and just draw a point somewhere over here. Let us say this is point P with the coordinates x, y. अगर ये origin था तो O से P एक line segment draw कर and think of it as a vector. अब vector बोल या line segment बोल ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, but just for the time being let me show it to you as a vector. ये जो OP का length है let's call it equal to r and अगर ये triangle finish करेगा तो P के coordinates से हमें मालूम पड़ता है कि ये जो horizontal length है वो x आएगा और ये जो vertical length है वो y आएगा. अब ये जो लाइन ड्रॉ किया था O से P उसका इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव x मतलब पॉजिटिव x और ये y था तो पॉजिटिव x के साथ जो तेरा एंगल बनेगा OP का उसे ले ले थीटा. सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा. नाउ इफ यू वांट टू लोकेट द पॉइंट P तो पॉइंट P लोकेट करने के लिए या तो हमें x और y पता होना चाहिए या तो हमें r और थीटा पता होना चाहिए. इन आइदर केस वी कैन से दैट द पॉइंट P कैन बी इजीली लोकेटेड. तो जब भी मैं तुम्हें देता हूं r थीटा it is said that I have given you the polar coordinates. So for any point the polar coordinates are r and theta, where if you say r is going to be distance of that point from origin, and when I say theta it means inclination of diagram के हिसाब से देखेगा तो inclination of OP with respect to the positive x axis. So yes, polar coordinates मतलब I am giving you the information r and theta. R theta में r like I said is distance of P from origin and theta मतलब inclination of OP with respect to the positive x axis. अगर मैंने x और y दिया, it will be said that I have given you the Cartesian coordinates. So the Cartesian coordinates of the point are x, y. Now what you need to learn is a relation between r theta and x, y. अगर ये डायग्राम नोटिस करेगा तो यहाँ पे cos थीटा फाइंड करने का ट्राई कर. cos थीटा मतलब इट विल बी x अपॉन r. सो आई विल से cos थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r एंड सिमिलरली sin थीटा फाइंड कर. sin थीटा मतलब ऑपोजिट विच इज y अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज r. तो sin थीटा ट्राइंगल में तेरा बन जाएगा y अपॉन r. अब sin थीटा और cos थीटा का बेसिक डेफिनेशन व्हेन इट कम्स टू एन xy कोऑर्डिनेट सिस्टम इज दिस ओनली. The fundamental definition of sin theta and cos theta. I know sin theta is opposite upon hypotenuse, cos theta is adjacent upon hypotenuse. But in an xy coordinate system, you will always say sin theta is y upon r and cos theta is x upon r. This is precisely the reason why in the first quadrant sin theta and cos theta are positive. क्योंकि first quadrant में x और y दोनों positive आएगा, तो sin theta cos theta दोनों positive आएगा. तू कहेगा नीचे r था ना, what if r becomes negative? तू पहले देख r क्या था. r was distance of P from origin and distance can never be negative. तो r का तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है. r will always be positive. तो only on the plus minus of x and y तेरा cos theta sin theta किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा ये डिसाइड हो जाएगा. सो लाइक आई सेड x and y in the first quadrant both are positive, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin theta cos theta दोनों ही पॉजिटिव आएगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव आता है और y पॉजिटिव आता है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos theta is negative and sin theta is positive, and we all know tan theta is going to be sin theta upon cos theta. तो tan theta जो है वो positive upon negative मतलब negative आएगा. What happens in the third quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों negative, तो sin theta cos theta दोनों negative आएगा एंड इन दोनों को डिवाइड करेगा मतलब sin theta upon cos theta, तो tan theta आएगा negative upon negative which is positive. सिमिलरली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x तेरा पॉजिटिव हो जाएगा. x पॉजिटिव मतलब cos थीटा पॉजिटिव, तो cos थीटा पॉजिटिव. sin थीटा वाज डिपेंडेंट ऑन y एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट y नेगेटिव, तो sin थीटा भी नेगेटिव एंड इस वजह से tan थीटा जो है ये तेरा नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आएगा. आई नो ये रिजल्ट आपने पहले भी पढ़ा था बट स्टिल मैंने एक बार रिपीट करके रख दिया. सो व्हाटएवर आई जस्ट रिपीटेड इज cos थीटा एंड sin थीटा के इन डेफिनेशंस की वजह से किस क्वाड्रेंट में cos थीटा sin थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा. गेट बैक टू अवर ओरिजिनल क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स दूं
तो तुम्हें कार्टेशियन निकालने को आना चाहिए, और अगर मैं तुम्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दूं तो तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को आना चाहिए। सबसे पहले इस रिलेशन पे आ जा। इस रिलेशन में अगर रीअरेंज करेगा तो यू कैन टेक r ऑन द अदर साइड and clearly x becomes r cos theta and y becomes r sin theta. So basically if r and theta are known, then you can say x will be equal to r cos theta and y will be equal to r sin theta. Basically you can find your Cartesian coordinates x comma y, as we saw that x is r cos theta and y is r sin theta. So yes, my point is if r and theta are known, then the Cartesian coordinates x comma y can be found out by the formula x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, and these become the coordinates of your point. ये तो हो गया r theta दिया था और xy ढूंढा. What if xy are given and r theta ढूंढने बोला है? So if xy are known, then r ढूंढने का तरीका सिंपल तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम है. If you check this triangle, it is a right angle triangle. Clearly r is the hypotenuse and the remaining two sides are equal to x and y. So by the Pythagoras theorem, r आ जाएगा square root of x square plus y square. And अगर इस triangle को देखेगा तो इस triangle में tan theta निकाल. Tan theta is opposite which is y upon adjacent which is x. So tan theta is going to be y upon x. तो tan को दूसरे साइड ले ले तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. अब tan इनवर्स का फंक्शन कैसे काम करेगा? तो जनरली हम क्या बोलते हैं, अगर हम ट्रिगो की बात करेंगे तो ऐसा होता है कि अगर मैंने कहा sin 30 तो तू कहेगा sin 30 इक्वल टू हाफ. बेसिकली साइन ऑफ एन एंगल गिव्स अ वैल्यू. अगर साइन को वहां पे ले लेगा तो रिलेशन ऐसा बनेगा साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू मस्ट गिव द एंगल. तो दैट इज हाउ इनवर्स फंक्शंस वर्क. इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता है. tan इनवर्स y अपॉन x डज नॉट मीन 1 अपॉन tan y अपॉन x. इनवर्स का मीनिंग होता है कि अगर मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा तो तुम मुझे एंगल दोगे. और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा होता है, जैसे एक और एग्जांपल लेगा तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 आता है. तो इसका अगर उल्टा करेगा, मतलब इनवर्स के टर्म्स में लिखने का ट्राई करेगा, तो यू विल हैव 45 डिग्री इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1. तू नोटिस कर इसमें तूने क्या किया, यू हैड tan ऑफ एंगल गिविंग यू वैल्यू, एंड इनवर्स फंक्शंस में क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ वैल्यू हैज टू गिव यू द करस्पॉन्डिंग एंगल. सो यस, दैट इज हाउ द इनवर्स फंक्शंस आर गोइंग टू वर्क. इस इनवर्स के वर्किंग के लिए तुम्हें कुछ सम्स सॉल्व करने होंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर, एंड लाइक आई सेड these sums will be taken at a later part in this video. So yes, this is all about polar and Cartesian coordinates. Make sure that you know this entire theory so that while we do the sums you are able to answer them in a better way. आगे बढ़ with the properties of triangles. इस सेक्शन में एक बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमेशा याद रखना. इन जनरल अगर मैं एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करता हूं तो whenever I write capital A, capital B, capital C, I am referring to my angles A, B, C respectively. अगर मैंने कभी भी लिखा small a, small b, small c, small a मतलब length of side opposite to angle A which is the length BC, small b मतलब length of side opposite to angle B which is the length of AC, small c मतलब length of side opposite to angle C which is small c. तो इन टर्मिनोलॉजीज के साथ ले ले तेरा पहला रूल which is the sine rule. Sine rule tells you that A upon sine A will be equal to B upon sin B will be equal to C upon sin C, and ये पूरा रेशियो इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 2r. इसमें r मतलब तेरा जो ट्रायंगल का सर्कम सर्कल बनेगा, मतलब ये वाला सर्कल, ट्रायंगल का जो तेरा सर्कम सर्कल बनेगा उसका रेडियस इज दैट कैपिटल R. सो r here is going to be the circum radius. So this is the entire result you should remember. ये साइन रूल जो है ये हमारा यूज होने वाला है काफी सारे सम्स में एज इट इज. इसका डेरिवेशन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है. I am not covering it in the video because it doesn't seem much important, but still I would really encourage you all to look at that derivation. It will ensure that you have a better learning experience. And if at all वो derivation अभी नहीं देखना है, बाद में देखना है, तब भी ठीक है, but make sure that you remember this particular rule I have written over here. ये रूल अभी सीधा हम यूज करेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल्स लेंगे तभी. आगे बढ़ कोसाइन रूल. कोसाइन रूल के लिए पहले तो लिख ले cos A. I am writing it in a slightly different way from the textbook, so you can learn it either the way I am writing it here or you can learn it from the textbook. It is entirely up to you. Cos A अगर लिखना है तो जो दूसरे दो अल्फाबेट से पहले वो लिख ले.
cos A will be b square plus c square, फिर जो तीसरा अल्फाबेट है करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एंगल उसे माइनस कर, तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स इन दो अल्फाबेट्स को रिपीट कर, सो 2 टाइम्स बी सी। वंस अगेन इसका डेरिवेशन भी आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है। आई वुड हाईली एनकरेज यू ऑल टू रीड दैट डेरिवेशन फॉर अ बेटर लर्निंग, एंड अभी नहीं करना है तो एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूला। इन अ सिमिलर वे ट्राई राइटिंग अ फॉर्मूला फॉर कॉस बी। कॉस बी बोला ना, ए के लिए पहले बी और सी आया, तो बी के लिए पहले आएगा ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस तीसरा अल्फाबेट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा ये दो टर्म्स वापस, तो नीचे आएगा 2ac। Similarly, try writing a formula for cos c. Now we all know cos c आएगा a square plus b square minus c square upon 2ab. But इस केस में let's try to write the formula in terms of the length of sides, not using abc, मतलब not using small a small b small c, but using the lengths ab, bc and ac, so that diagram से भी आप समझ सको कि cos c का फॉर्मूला बनेगा कैसे। cos c मतलब ये वाला एंगल, उसके लिए हमें लेना था a square plus b square, so that basically represents the adjacent sides to our reference angle, that will be bc square plus ac square, so bc square plus ac square minus करना होगा opposite side which is c square, in the diagram it will be ab square, and denominator में आएगा इन दोनों का multiplication, so नीचे आ जाएगा 2 times bc into ac. So yes, that's how we write the cosine rule. Make sure that you remember that rule, and we go ahead with the next rule, which is the projection rule. प्रोजेक्शन रूल में ऐसा होगा कि अगर तू लिखेगा a cos b प्लस b cos a, तुमको दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos लेना होगा, cos b के साथ a मल्टीप्लाई कर और सामने cos a के साथ b मल्टीप्लाई कर, इसका ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगा थर्ड साइड का लेंथ विच इज इक्वल टू c। इसका प्रूफ कैसे होगा, तो कोसाइन रूल से cos b लिख ले विच इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, और cos a लिख ले विच इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। इन दोनों को सब्सटीट्यूट करेगा और सिंप्लीफाई करेगा तो फाइनल आंसर c आने वाला है। सो ये तेरा प्रोजेक्शन रूल हो गया। प्रोजेक्शन रूल कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। एक वे तो यहां पे लिखा है, दूसरा वे मान ले ab के बदले हमने bc ले लिया, तो दैट विल बी b cos c प्लस c cos b इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड विच इज a। थर्ड, तूने ए बी लिया, बी सी लिया, ए सी भी ले ले, तो थर्ड वे ऑफ राइटिंग इट विल बी ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड साइड विच इज बी। सो यस, दीज आर 3 ways by which you can write the projection rule in triangles. आगे बढ़, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूले का भी डेरिवेशन टेक्स्ट बुक्स में दिया है। Once again, I am not covering the derivations, but I would highly encourage you all to look at the derivations for better learning. For now, I will directly write the formula. हाफ एंगल फॉर्मूले मतलब फॉर्मूला होगा साइन ऑफ a by 2 का, फिर लिखेंगे cos ऑफ a by 2 और इनको डिवाइड करके आ जाएगा हमारा tan ऑफ a by 2। साइन ऑफ a by 2 का फॉर्मूला होता है रूट ओवर, यहां पे सबसे पहले डिफाइन होगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज बेसिकली a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। सिंपल मीनिंग में बोलूं तो पेरीमीटर का हाफ। तो न्यूमरेटर में करना होगा s माइनस, अगर a है तो दूसरे दो साइड्स का लेंथ ले ले, s माइनस बी s माइनस सी, और जो तूने साइड्स का लेंथ लिया उन्हीं को डिनोमिनेटर में ले ले, तो अपॉन बी सी। फिर cos a by 2 ले ले। अब cos a by 2 लिखेगा ना, उसके पहले एक फॉर्मूला है समथिंग कॉल्ड हेरॉन्स फॉर्मूला, वो देख ले। हेरॉन्स फॉर्मूला सेज दैट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल कैन बी रिटन एज रूट ओवर s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c, जहां पे s मतलब सेमी पेरीमीटर, आई डिस्कस्ड सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए बी सी मतलब जो हमारे ट्राइंगल के तीनों साइड्स थे उनका लेंथ। एंड रेफरेंस में मैंने ये भी बोला था a मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑपोजिट टू एंगल a विच इज bc, एंड सिमिलरली फॉर b एंड c। अगर ये तेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है विच इज बेसिकली द हेरॉन्स फॉर्मूला, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लिखते टाइम न्यूमरेटर में साइन के लिए जो टर्म्स आ गया, कॉस के लिए जो बचा हुआ टर्म्स है वो आएगा। तो व्हेन आई राइट cos a by 2, ये दो टर्म्स आ गया। हेरॉन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का बचा हुआ टर्म्स था s माइनस a, तो ये तेरा cos में आएगा, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा विच इज bc। नाउ फाइनली टू गेट tan a by 2 यू विल डिवाइड बोथ दीज फॉर्मूले। डिवाइड करेगा तो रूट bc कट जाएगा,
एंड तेरे पास आएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए. देर इज अ वे टू रीअरेंज दिस फॉर्मूला. सो tan a by 2 को एक और वे में तू लिख पाएगा. नाउ दैट यू नो हेरॉन्स फॉर्मूला इज दिस, यू ट्राई टू ब्रिंग द मिसिंग टर्म्स इन द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर को तो मल्टीप्लाई कर पाएगा विद s इंटू एस माइनस ए. I will multiply the denominator also with s into s minus a. Now clearly if you look at the entire numerator, it represents area of the triangle. So area of triangle I will simply write it as triangle. Triangle मतलब area of our triangle ABC. नीचे आएगा s square into s minus a the whole square, और रूट लेगा तो रूट हट जाएगा और तेरे पास बचेगा सिर्फ s into s minus a. So yes, this is it with all your half angle formula. अगर ये फॉर्मूला तुझे समझ चुका है तो ट्राई राइटिंग द फॉर्मूला फॉर द सेकंड एंगल एज वेल. सेकंड एंगल मतलब आई एम आस्किंग द फॉर्मूला फॉर साइन b by 2. साइन b by 2 के लिए लिखेगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ द टू ऑपोजिट साइड्स विच आर इन दिस केस s माइनस a इंटू s माइनस c. नीचे इनका ही मल्टीप्लीकेशन आएगा ac. फिर आ जाएगा cos b by 2. हेरॉन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो मिसिंग टर्म्स है s माइनस a s माइनस c यूज किया ना, तो मिसिंग टर्म्स आएगा s माइनस b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर यही रहेगा जो साइन का था विच इज ac, एंड tan of a by 2 obtained by dividing these two formula. So that will be root over s minus a into s minus c अपॉन आएगा s into s minus b. एंड जैसे हमने यहां पे सिंप्लीफाई किया था वैसे इसको भी सिंप्लीफाई करेगा. ओके, जस्ट वन करेक्शन हियर, tan a by 2 नहीं tan b by 2. यस, जैसे इसको सिंप्लीफाई किया था वैसे इसको भी सिंप्लीफाई कर, तो tan b by 2 आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन s इंटू एस माइनस बी. अब a by 2 और b by 2 के लिए मैंने लिखा है, c by 2 के लिए आप अपने आप लिख लो, एंड while you write it you can verify your formula from the textbook only. So yes, with that we are done with one more set of formula which were the half angle formula. आगे बढ़, हेरॉन्स फॉर्मूला हमने पढ़ लिया. दिस इज हाउ यू कैन राइट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय द हेरॉन्स फॉर्मूला. और फाइनली आजा विद द नेक्स्ट फॉर्मूला विच इज नेपियर्स एनालॉजी. इस फॉर्मूला में तू एक एक्सप्रेशन ले ले ऑफ द टाइप tan a minus b by 2. बेसिकली दो एंगल्स को माइनस कर, उसका डिवाइड बाय 2 कर और उस एक्सप्रेशन का tan ले ले. अभी इस पूरे एक्सप्रेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा. जो दो एंगल्स माइनस किया उसका ही करस्पॉन्डिंग साइड्स न्यूमरेटर में लिख, मतलब न्यूमरेटर में a माइनस बी. ऊपर तूने जो माइनस किया उसे डिनोमिनेटर में प्लस कर, तो a प्लस बी, और मल्टीप्लाई कर कॉट ऑफ थर्ड एंगल डिवाइडेड बाय 2 के साथ, मतलब मल्टीप्लाई किया है कॉट ऑफ c बाय 2 के साथ. इसका भी डेरिवेशन तेरे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है. इसे एक प्रूफ टाइप सम की तरह तू सॉल्व भी कर पाएगा. अभी सॉल्व नहीं किया या अभी डेरिवेशन रेफर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में रेफर कर ले. बट फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट रिमेंबर द फाइनल फॉर्मूला विच, मतलब ये नेपियर्स एनालॉजी का जो फाइनल फॉर्मूला मैंने बनाया इसको याद रखना. कुछ और सेटअप्स के लिए ये फॉर्मूला बना के देख. tan ऑफ, इंस्टेड ऑफ a एंड b लेट अस सब्ट्रैक्ट b एंड c. सो tan ऑफ b माइनस c बाई 2, ऊपर हम लिख लेंगे b माइनस c, नीचे उन्हीं को प्लस कर b प्लस c, और मल्टीप्लाई कर कॉट ऑफ थर्ड एंगल मतलब a डिवाइडेड बाई 2 के साथ. यू कैन राइट इट फॉर वन मोर कॉम्बिनेशन विच इज tan ऑफ लेट अस से a एंड c, a माइनस c माइनस a, जो तेरा मन करे वो कर. I'll do c minus a upon 2. तो राइट में आएगा ऊपर c minus a, डिवाइड करेगा विद द सेम थिंग इन प्लस c plus a into cot of third angle divided by 2 के साथ. So yes, this is your last formula for the theory of this video, that is Napier's analogy. एक्सरसाइज शुरू करेगा उसके पहले सारा फॉर्मूला एकदम अच्छे से पढ़ लेना, एंड वंस यू आर रेडी विद ऑल द फॉर्मूला देन यू कैन टेक द सम्स इन द एक्सरसाइज. दिस वुड एंश्योर अ बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल यू पीपल. फर्स्ट सम ले ले, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू. ये तेरा r का फॉर्मूला, ये तेरा थीटा, तो क्लियरली x का फॉर्मूला था r cos थीटा. इस केस में आ जाएगा √2 इंटू cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 1 बाई √2, तो √2 इंटू 1 बाई √2 आ जाएगा 1. सिमिलरली y का फॉर्मूला था r sin थीटा, ये बनेगा √2 इंटू साइन पाई बाई 4, मतलब √2 इंटू 1 बाई √2, ये भी 1 आएगा. तो तेरा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है दे बिकम 1,1. टेक द सेकेंड सम, इसमें तेरा x मतलब r cos थीटा, मतलब ये आएगा 4 इंटू cos पाई बाई 2, या 4 cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, तो 4 इंटू 0 तेरा आ जाएगा 0. फिर y का फॉर्मूला आएगा 4 इंटू साइन पाई बाई 2, बिकॉज y वॉज r साइन थीटा, ये बनेगा 4 इंटू 1 विच इज 4.
तो तेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकल के आएगा 0,4। थर्ड ले ले, इसमें r मतलब 3/4 और थीटा मतलब 3π/4, सो x आ जाएगा r मतलब 3/4 इंटू कॉस 3π/4। कॉस 3π/4 मतलब कॉस 135, ये आएगा -1/√2, तो ये बनेगा -3/4√2। और सिमिलरली y ले ले, y बनेगा r मतलब 3/4 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 3π/4। साइन 3π/4 आएगा 1/√2 और मल्टीप्लाई करेगा तो 3/4 इंटू 1/√2, दैट मेक्स इट 3/4√2। तो थर्ड सम में तेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकल के आया -3/4√2, 3/4√2। एंड फोर्थ सम ले ले, इस केस में r इज गिवन एज 1/2 एंड थीटा इज गिवन एज 7π/3। 7π/3 मतलब 7 इंटू 60 मतलब 420 डिग्रीज। एंड 420 डिग्रीज नोटिस करेगा तो इट इज कोटर्मिनल विद 60 डिग्रीज, सो यू कैन इमेजिन द एंगल टू बी 60 डिग्रीज। वो 60 दिया नहीं है बट यू कैन इमेजिन इट टू बी 60 डिग्रीज। सो द पोलर कोऑर्डिनेट्स, so the Cartesian coordinates will be r, which is half, into cos 420। cos 420 मतलब cos 60 which is half, तो ये बनेगा half into half which is 1/4। Similarly y will be r sin theta मतलब 1/2 into √3/2, that will make it √3/4। So the final Cartesian coordinates are going to become x comma y, which is 1/4 comma √3/4। So yes, that's it with finding Cartesian coordinates of all sums in sum number 1. आगे बढ़, find the polar coordinates whose Cartesian coordinates are given। तो ये x, y दिया है, तुम्हें polar coordinates मतलब r और थीटा निकालना था। इस केस में r का फॉर्मूला √x² + y², √2 का स्क्वायर करेगा तो 2 + 2 आएगा, ये 2 + 2 4 आ गया, उसका रूट आएगा 2। थीटा का फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y मतलब √2, x मतलब √2, इन दोनों को डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। आई नो tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री, बट यहाँ पे tan इनवर्स लेते टाइम तुम्हें पॉइंट का क्वाड्रेंट देखना भी जरूरी है। फिलहाल ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री ही आएगा। सो आई विल राइट इट स्ट्रेट अवे एज 45 डिग्री और π/4 रेडियन। सो जो r थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेगा, द पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर द फर्स्ट पॉइंट आर 2, π/4। सिमिलरली सेकंड ले ले, सेकंड के लिए पहले r निकालने का ट्राई कर। सो इसके लिए तेरा r का वैल्यू बनेगा √0² + 1/2², सो दैट इज 0 + 1/4। 1/4 का रूट निकालेगा तो ये 1/2 आएगा। एंड थीटा फाइंड कर, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y अपॉन x मतलब हाफ अपॉन 0, हाफ अपॉन 0 करेगा तो ये एक्चुअली इंफिनिटी आता है। नाउ यू नीड टू बी अवेयर वेदर इट इज प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अगर ये प्लस इंफिनिटी आया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में व्हेन यू से प्लस इंफिनिटी यू आर कोइंसाइडिंग विद पॉजिटिव y, एंड व्हेन यू से माइनस इंफिनिटी यू आर कोइंसाइडिंग विद नेगेटिव y। सो ये माइनस इंफिनिटी इधर आएगा, इंफिनिटी इधर आएगा। सो tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इंफिनिटी, द एंगल विल बी टेकन एज प्लस 90 डिग्री, तो थीटा आएगा 90 डिग्री विच इज π/2 रेडियन। एंड इस पर्टिकुलर सम के लिए तेरा पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब r और थीटा ये बन जाएगा 1/2, π/2। So I have just rubbed out everything so that we get space for the remaining 2 questions. Third sum ले ले। So with the third sum r is going to be √x² 1 and y² आएगा 3, so 1 + 3 ये करेगा √4 मतलब 2 आएगा। एंड थीटा का फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ वही y अपॉन x, तो ये बनेगा -√3/1 विच इज -√3। अब नोटिस कर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है और ये जो एंगल बनेगा tan इनवर्स ऑफ, तू माइनस इग्नोर कर, tan इनवर्स √3 बेसिकली 60 डिग्री होता है, तो इट इज द एंगल विद x एक्सिस विच विल बी 60 डिग्री। तो एक्चुअल एंगल पॉजिटिव x के साथ मेजर करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पूरा एंगल निकल के आएगा तेरा 300 डिग्रीज। तो ये जो थीटा बनेगा इस केस में आएगा 300 डिग्रीज, और रेडियन में लिख लेगा तो दिस इज गोइंग टू बी 5π/3। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग विद द पोलर कोऑर्डिनेट्स। इंपॉर्टेंट इसमें ये रहेगा tan इनवर्स लेते टाइम कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये भी तुम देखो। पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके हिसाब से तो थीटा का फाइनल वैल्यू तेरा
मतलब उसके हिसाब से तेरा थीटा का फाइनल वैल्यू डिटरमाइन होगा। तो इसी तरीके से सम नंबर 4 आंसर करने का ट्राई कर। फिलहाल तो सम नंबर 4 मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, तो तेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेट्स आंसर इट एज इट इज फॉर नाउ। 3/2 का स्क्वायर कर, सो दैट विल बी 9/4, प्लस इसका स्क्वायर कर तो दैट विल बी 9 into 3 मतलब 27/4, ऐड करेगा 36/4, 9 आएगा, और 9 का रूट लेगा तो 3 आएगा, एंड थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अगर y अपॉन x करेगा तो 3/2 कट होकर सिर्फ √3 बचेगा। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा 60 डिग्री आएगा, और रेडियन में लिखेगा तो π/3 हो जाएगा। What if I modify the sum and instead of giving you एक फिफ्थ सम ले ले, instead of giving you 3/2 and 3√3/2, I am giving you -3/2 and 3√3/2। अब इसका r निकालेगा तो जैसे ये तेरा 3 आया वैसे इधर भी ये तेरा r इक्वल टू 3 ही आएगा, बट थीटा निकालेगा तो थीटा इस टाइम आएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। y अपॉन x करेगा तो 3/2 कट होगा और एक -√3 बचेगा। अब tan इनवर्स -√3 तू लेगा कैसे? इस पॉइंट का पोजीशन देख, दिस पॉइंट इज गोइंग टू लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो पॉइंट समवेयर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव इग्नोर कर, tan इनवर्स ऑफ √3 करेगा तो 60 डिग्री आने वाला है। ये 60 डिग्री हमेशा x के साथ बनेगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो पॉजिटिव x पे से मेजर करेगा, ये पूरा एंगल आएगा 120 डिग्री। तो इस पॉइंट का जो थीटा बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री, एंड रेडियन में लिखेगा तो ये आएगा 2π/3। तो इस पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट्स आएगा वो आएगा 3,2π/3। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट दैट व्हेन यू टेक tan इनवर्स तो थीटा के लिए तू क्या वैल्यू लिखेगा वो डिटरमाइन होने वाला है तेरा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उससे। सो बी केयरफुल व्हाइल यू राइट द थीटा वैल्यू, you should know where the point in which quadrant the point lies, and accordingly you will write your theta values. So yes, that is it with solving the second sum where we were finding the polar coordinates with the information of Cartesian coordinates. आगे बढ़। Now this is a sum that is based on properties of triangles. Angle A is given, angle B is given, find the ratio of all the sides. A 45, B 60, तो C का जो वैल्यू आएगा, because all angles are going to add up to 180, C का वैल्यू आएगा 75 degrees. We have the sine rule which says a upon sin a. Sin a मतलब sin 45 which is 1/√2 which is equal to b upon sin b. Sin b मतलब sin 60 which is √3/2 equal to c upon sin 75. Sin 75 का वैल्यू 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। sin 75 का वैल्यू आएगा √3 + 1/2√2, एंड ये पूरा रेशियो इक्वल टू k आएगा एज पर द साइन रूल। आई नो दैट k इज इक्वल टू 2r, बट फिलहाल सम्स में अगर 2r का कोई यूटिलिटी नहीं है तो 2r लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट द एंटायर रेशियो इक्वल टू k एंड गो अहेड विथ योर सम। सो a बन जाएगा k/√2, b बन जाएगा √3/2, वहां पे ले ले, सो √3 k/2, एंड c बन जाएगा k इंटू √3 + 1 अपॉन 2√2। सो अगर a is to b is to c निकालने का ट्राई करेगा तो k थ्रू आउट कट कर पाएगा। सो a is to b is to c will simply be 1/√2 is to 1/2 is to √3 + 1 अपॉन 2√2। अगर ये डिनोमिनेटर्स एलिमिनेट करना है तो तू 2√2 से मल्टीप्लाई कर, तो यहां पे आ जाएगा 2 is to, यहां पे 2 कटेगा तो इंटू √2 आएगा, एंड इस 2 आ जाएगा √3 + 1। So yes, the final ratio of sides for the given triangle is 2 is to √2 is to √3 + 1, and that's how you are answering sum number 3. Sum number 4 ले लें। Prove that in a certain triangle, sin of b minus c/2 is going to be this. तो LHS से चालू करी, RHS से चालू करी, does not matter. It seems easier for me to start from RHS in this sum, so I will begin with RHS. जो b रहता है, if you remember the sine rule, a upon sin a is b upon sin b is c upon sin c equal to k. तो b upon sin b k आएगा, and you can replace the term b with k sin b. Minus c will become k sin c. नीचे आ जाएगा a, मतलब you will write it as k sin a, and into कर cos a/2 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ था। ऊपर इन दोनों टर्म्स में से k कॉमन आएगा और इस वाले k के साथ कट होगा, सो लेट्स कट इट हियर ओनली। अब न्यूमरेटर में तेरा फॉर्मूला अप्लाई कर, तो ये आएगा 2 cos b + c/2 इंटू साइन b - c/2 डिवाइडेड बाय साइन ए पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर, तो ये बनेगा 2 sin a/2
इंटू कॉस ए बाई टू, और एक इंटू कॉस ए बाई टू तेरे पास पहले से था। अब कॉस ए बाई टू ऊपर और नीचे कट होगा, साइन ऑफ बी प्लस सॉरी कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज साइन ऑफ सी बाई टू, ये सॉरी साइन ऑफ ए बाई टू। ये वाला फॉर्मूला भी 11th स्टैंडर्ड ट्रिगो चैप्टर ट्रिगो 2 चैप्टर 3 में पढ़ा था। सो यस, इफ यू नो ऑल दिस फॉर्मूले द सम्स विल गेट इजियर। ये सारे फॉर्मूला अभी तक नहीं आता है तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप वो 11th वाला चैप्टर पहले कर लो, एंड वंस यू आर फ्लुएंट विद दिस यू कैन गेट बैक टू द डेरिवेशंस हियर। सो यस, फॉर ऑल दोज हु नो इट, साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू कट हो जाएगा, ये एक 2 और 2 भी कट होगा, और बचेगा सिर्फ साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, and that is equal to your LHS. So yes, that is how we are proving sum number 4, and to आगे बढ़ with sum number 5. With usual notations, prove the following. So LHS के साथ शुरू कर। If you open the bracket तो पहला टर्म आएगा 2a and sin square c by 2 जो है, sin c by 2 का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाते टाइम इसी वीडियो में हमने कवर किया था। तो sin square c by 2 लिखना है। It will be written as s minus a s minus b अपॉन ए बी। इस ब्रैकेट ओपनिंग को कंटिन्यू कर तो यहां पे आएगा 2c, और साइन स्क्वायर ए बाई टू का फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर के टर्म्स में ही लिख ले, या हाफ एंगल फॉर्मूला जो पढ़ा था उसके टर्म्स में लिख। तो s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, दिस विल बी इक्वल टू, अगर यहां से a और a कटा और यहां से c और c कटा, इन दोनों का एक कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा विच इज b। अब यहां से तू 2 कॉमन ले पाएगा, और s माइनस बी का भी एक टर्म है जो कॉमन आ पाएगा। सो यू टेक 2 टाइम्स s माइनस बी अपॉन बी कॉमन, एंड ब्रैकेट में नोटिस करेगा तो ब्रैकेट में बचा s माइनस ए प्लस s माइनस सी। दिस विल बी 2 टाइम्स s माइनस बी अपॉन बी। अगर s प्लस s करेगा तो s प्लस s मतलब 2s, 2s मतलब a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ गया 2s विच इज a प्लस बी प्लस सी। उसमें से a और c को माइनस कर, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस सी, दैट मेक्स इट सिंपली b। अगर यहाँ पे b बचा तो ये b और b कट होगा, एंड वी आर फाइनली लेफ्ट विद 2 टाइम्स s माइनस बी। इसमें s को दोबारा डाल दे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस b, ब्रैकेट इवेल्युएट करेगा तो दैट विल बी a प्लस सी एंड b माइनस 2b विल मेक इट माइनस b, एंड 2 के साथ ओपन करेगा तो ये 2 कट होगा, एंड यू आर फाइनली लेफ्ट विद a माइनस b प्लस c, एंड दैट इज इक्वल टू योर RHS. सो यस, दैट्स हाउ वी आर प्रूविंग आवर सम नंबर 5. यहाँ पे तेरा हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हुआ था, so I will emphasize once again on the fact that be very thoroughly prepared with the formula when you take the sums, and formula अगर एकदम thoroughly आपका prepared है तो sums आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आगे बढ़ सम नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग। इस टाइप के सम्स में तू पहले इस वाले टर्म को टारगेट कर, a क्यूब साइन ऑफ b माइनस सी। आई विल राइट इट एज a स्क्वायर इंटू a इंटू साइन ऑफ b माइनस सी। जो a है उसे लिख k इंटू साइन है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर द साइन रूल, a अपॉन साइन a इज b अपॉन साइन b इज c अपॉन साइन c इक्वल टू k। तो a अपॉन साइन a इक्वल टू k, a will be written as k into sin a. So k sin a into sin of b minus c. Again triangle का प्रॉपर्टी है, 11th में पढ़ा था, sin a can be written as sin of b plus c into sin of b minus c. Sin of b plus c into sin of b minus c, again 11th का फॉर्मूला, तो a square into k into ये बनेगा sin square b minus sin square c। दोबारा तेरा साइन रूल समझ, a अपॉन साइन a वॉज b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, एंड दैट इज इक्वल टू k। तो साइन b जो आएगा दैट कैन बी रिटन एज b अपॉन k। तो साइन स्क्वायर b आई विल राइट इट एज b स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। सो a स्क्वायर k, ये आएगा b स्क्वायर बाई k स्क्वायर। सिमिलरली साइन c दैट कैन बी रिटन एज c अपॉन k इफ यू रीअरेंज इट, तो ये बनेगा c स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। अपॉन के स्क्वायर तेरा कॉमन आएगा और के साथ कटेगा, सो आई विल हैव 1 अपॉन के। ए स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बनेगा तेरा वैल्यू ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी का। नाउ सिमिलरली
ये पूरा लंबा डेरिवेशन अगर करेगा तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए का, दैट विल बी 1 अपॉन के, देन इट विल बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर आया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओनली, एंड फाइनली इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1 अपॉन के इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज ए स्क्वायर सी स्क्वायर जस्ट फॉर बेटर क्लैरिटी, और सेकेंड टर्म आएगा माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर विच आई विल राइट एज माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी इसको और इसको एड अप करेगा तो सब में से 1 अपॉन के तेरा कॉमन आएगा, ब्रैकेट में देखेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट होगा, फिर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट होगा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट होगा, तो दिस विल बी 1 बाई के इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। अब परफेक्टली मैंने एकदम रिटन फॉर्मेट में लिखा नहीं है, बट आई बिलीव द कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू एंड इट इज ऑल्सो क्लियर कि ये प्रूफ तेरा कैसे आया। इन सबका अलग अलग लिखना, राइटिंग वर्क थोड़ा लंबा होगा, बट yeah, just make sure that you follow this entire calculation, and yes, that's how we are proving that this entire relation will add up to give you equal to 0. आगे बढ़ सम नंबर 7, in triangle ABC if these are in AP prove that a square b square c square are also in AP। अगर तीन टर्म्स AP में है तो मिडिल टर्म मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 2 cot b should be equal to addition of the other two, cot a plus cot c। सिमिलरली अगर इसको एपी में प्रूव करना है तो बेसिकली यू हैव टू प्रूव दैट 2b स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ये गिवन है हमारा, तो ये गिवन से स्टार्ट कर और ये प्रूफ लाने का ट्राई कर। कॉट बी मतलब कॉस बी अपॉन साइन बी, सो ये बनेगा 2 कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल टू ये बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये बनेगा कॉस सी अपॉन साइन सी, कॉट सी का वैल्यू लिखा। राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो राइट हैंड साइड तेरा बन जाएगा साइन सी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस सी द होल अपॉन साइन ए इंटू साइन सी। अब इसका अगर थोड़ा देखेगा तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए प्लस सी, तो न्यूमरेटर को पूरा ही कट कर दे और इसको लिख ले साइन ऑफ ए प्लस सी। वंस अगेन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स के हिसाब से साइन ऑफ ए प्लस सी इज साइन बी, तो इसे मैं लिख लूंगा साइन बी करके, और एलएचएस में था मेरे पास 2 कॉस बी अपॉन साइन बी। अब रीअरेंज कर ले तो हमें मिलेगा 2 इंटू साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, ये राइट में जाएगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर बी। अब साइन रूल यूज कर, साइन रूल के हिसाब से साइन ए ये बन जाएगा 2 इंटू ए अपॉन के, साइन सी बन जाएगा सी अपॉन के, कॉस बी का फॉर्मूला कोसाइन रूल से लिख तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और वही साइन रूल के हिसाब से साइन स्क्वायर बी, साइन बी बनेगा बी अपॉन के, तो स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। यहां पे के और के कटेगा विद द के स्क्वायर ओवर हियर, 2ac कटेगा 2ac के साथ, और जो माइनस बी स्क्वायर बचा उसे राइट में ले ले तो तुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। नाउ दैट वी हैव प्रूव्ड दिस, इट इज सफिशिएंट टू से दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP। That is how we are proving sum number 7. आगे बढ़ sum number 8. In triangle ABC, if this is given, then prove that triangle is either a right angle triangle or an isosceles triangle. यहाँ पे जो A था उस A को लिख ले K sin है, so I have K sin A into cos A पहले से था, जो B था उसे भी साइन रूल से लिख ले K sin B। तू दोनों साइड्स पे इस cos को इस K को कट कर दे एंड फिर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर 2 के साथ, 2 साइन ए कॉस ए मतलब ये बन जाएगा साइन 2a एंड 2 साइन बी कॉस बी मतलब ये बन जाएगा साइन 2b। एक ट्राइंगल में जब साइन 2a इक्वल टू साइन 2b आएगा तो इसका मतलब होता है कि 2a इक्वल टू 2b होगा, या तो 2a एंड 2b विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स,
विच मीन्स 2a विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2b। इसमें अगर 2 काटेगा तो a इक्वल टू b आएगा, मतलब ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, जो भी इसका स्पेलिंग है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड अगर यहाँ पे 2b को लेफ्ट में लेगा तो 2a प्लस 2b 180 आएगा, और 2 कट करेगा तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। अगर a प्लस बी 90 है तो तीसरा एंगल c विल बी 90 डिग्री, तो एंगल c 90 आ गया, इस वजह से ट्राइंगल आएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल c इक्वल टू 90 डिग्री, और ये दोनों में से एक ही केस पॉसिबल है। सो वी आर फाइनली प्रूविंग दैट द ट्राइंगल इज ईदर आइसोसेलेस और द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल c बीइंग 90 डिग्री। आगे बढ़ सम नंबर 9। विद द यूजुअल नोटेशंस यू नीड टू प्रूव दिस। कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ कोसाइन रूल अप्लाई करना है। सो LHS के साथ शुरू करेगा, 2 के साथ ओपन कर, तो 2bc cos a मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, प्लस यहां से आएगा 2ac cos b लिख एज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, प्लस इस 2 को यहां पे भी ओपन कर तो 2ab, और cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ब्रैकेट के बाहर का और अंदर का डिनोमिनेटर कट हो गया, बचेगा b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सिर्फ बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब सिर्फ सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब सिर्फ ए स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। सम नंबर 9 में कुछ था ही नहीं, बस कॉस रूल अप्लाई करना था और ब्रैकेट ओपन करके आंसर आ गया। आगे बढ़ सम नंबर 10। ABC का वैल्यूज दिया है, फाइंड कॉस ए। अगर ABC दिया है तो पहले तो सेमी पेरीमीटर ले ले। सेमी पेरीमीटर आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 18 प्लस 24 मतलब 42 प्लस 30 72 डिवाइडेड बाई 2 करेगा 36 आएगा। पहला टर्म ले ले cos a मतलब b स्क्वायर आएगा 576 प्लस c स्क्वायर मतलब 900 माइनस a स्क्वायर मतलब 324, द होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a है ना, तो 2 इंटू b इंटू c आएगा। सो 2 इंटू 24 इंटू 30, इसको एडअप कर 900 एंड 500 1400 माइनस 300 मतलब 1100 एंड 76 माइनस 24 मतलब 52, तो 1152 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24 इंटू 30। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर तो 2 और 1152 कटेगा, सो दैट विल बी 5, 15 मतलब 7 और 576, 24 एंड 576 कटेगा तो ये 24 आएगा, बिकॉज 576 24 का ही स्क्वायर है, और 24 अपॉन 30 करेगा तो 4/5 आएगा। तो आई हैव cos a एज 4/5। सेकेंड ले ले साइन ऑफ a/2। साइन ऑफ a/2 के लिए तेरा हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर ले, दैट विल बी रूट ओवर, इट वॉज s माइनस बी s माइनस सी द होल अपॉन BC, तो ये तेरा निकल के आएगा रूट ओवर, s मतलब 36 b मतलब 24, तो s माइनस बी 12, s माइनस सी मतलब 6 अपॉन b इंटू सी मतलब 24 इंटू 30। इवेल्युएट करेगा तो 12 और 24 कट के 2 आएगा, 2 और 6 कट के 3 आएगा, और 3 और 30 कट के 10 आएगा, तो ये बन जाएगा 1/√10। थर्ड वी नीड cos a/2। आई नो हाफ एंगल फॉर्मूला है तेरे पास, बट साइन a/2 पता है ना, तो cos a/2 कैन बी फाउंड एज 1 माइनस साइन स्क्वायर a/2 और इसका रूट लेने का। सो ये 1/10 उसका स्क्वायर, सॉरी 1/√10 का स्क्वायर 1/10, 1 माइनस 1 अपॉन 10 इज 9 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 3/√10। तू फॉर्मूला से इवेल्युएट करेगा तब भी यही आएगा। फोर्थ ले ले tan a/2, तो tan a/2 is going to be sin a/2 upon cos a/2 which is 1/3। फिर फिफ्थ ले ले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आएगा हेरॉन्स फॉर्मूला से एज रूट ओवर s which is 36, s माइनस a मतलब 18, s माइनस b मतलब 12 और s माइनस c मतलब 6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर तो 36 का रूट आएगा 6, इसको लिख 6 इंटू 3
6 इंटू 2 और 6, तो 6 और 6 तेरा बाहर आएगा। यहाँ पे 3 इंटू 2 6 आएगा और वो 6 इंटू 6 का रूट भी 6 करके बाहर आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा 216 स्क्वायर यूनिट्स। और फिर आजा सिक्स्थ वाले पे साइन ए। साइन ए भी मिल जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से, और कॉस ए तूने यहाँ पे निकाला था, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3/5। सो यस, दैट्स हाउ वी सॉल्व सम नंबर 10। एंड आगे बढ़ विद सम नंबर 11। प्रूव द फॉलोइंग। इसमें देख, यू हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो किसी एक का वैल्यू निकाल एंड बाकी दोनों का वैल्यू सिमिलरली फाइंड कर पाएगा। सो इस केस में गो फॉर बी प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2। अगर इवेल्युएट करेगा तो साइन रूल से बी का वैल्यू आएगा के साइन बी, प्लस सी आएगा के साइन सी, माइनस आएगा के साइन ए, द होल इनटू, अभी के लिए रहने दे tan ऑफ a बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू के कॉमन ले ले, के कॉमन लेके साइन b प्लस साइन c, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर तो ये आएगा 2 साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ b माइनस सी बाई 2, माइनस साइन ए बचेगा और साइन ए पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर, सो दैट विल बी 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, और बाहर जो tan a बाई 2 है उसे लिख ले एज साइन a बाई 2 अपॉन कॉस a बाई 2। अभी यहां पे साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2, एक ट्राइंगल के लिए ये टर्म बन जाएगा कॉस ऑफ a बाई 2। तो इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से, कॉस ऑफ a बाई 2 को कॉमन निकाल पाएगा, और कॉस ऑफ a बाई 2 कॉमन आएगा तो ये नीचे वाला कॉस a बाई 2 के साथ कट होगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा k, ये साइन a बाई 2 आएगा, ब्रैकेट में ये 2 रहने दे, या तो 2 चाहिए तो 2 भी कॉमन ले ले, सो इंटू 2, ब्रैकेट में बचेगा कॉस ऑफ b माइनस सी बाई 2, सो आई विल राइट इट एज कॉस b बाई 2 माइनस सी बाई 2, बीच में माइनस बचेगा, 2 हमने कॉमन लिया था और कॉस a बाई 2 भी तू कॉमन ले चुका था। साइन a बाई 2 वंस अगेन बाई ट्रिग्नोमेट्री कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ b बाई 2 प्लस c बाई 2। So this will be 2k into sin a by 2 into, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेगा तो पहला ब्रैकेट ओपन कर, ये आएगा cos b by 2 cos c by 2 प्लस sin b by 2 sin c by 2, और माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर आएगा, इसका ओपनिंग रहेगा cos b by 2 cos c by 2 माइनस sin b by 2 sin c by 2। माइनस के साथ ओपन करेगा तो cos वाला टर्म कट होगा, इधर बचा था साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, और माइनस ऑफ माइनस इधर भी आएगा साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, तो ये टोटल बन जाएगा 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। आई हैव नॉट रिटन एवरीथिंग बिकॉज वंस अगेन इस टाइप के सम्स वो 11th वाले हैं और ट्रिगो 2 के चैप्टर में आखिरी एक्सरसाइज में थे। सो वहां पे अगर इसका प्रैक्टिस अच्छे से किया रहेगा, इतना स्टेप्स जो मैंने कहा वो आप मेंटली कर पाओगे। सो यस, विद दैट यू कैन राइट द फाइनल एक्सप्रेशन। ये 2 2s are 4 आएगा, तो ये बनेगा 4k साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। तो ये तेरा इस पार्ट का एक्सपांशन आ गया। सिमिलरली इसे भी एक्सपांड करेगा सेम फॉर्मूला सेम सेटअप के साथ, तो इसका भी यही वैल्यू आएगा, और इसे एक्सपांड करेगा सेम कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसका भी यही वैल्यू आएगा। सो बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव द सेम एक्सपांशन, और बेसिकली द एक्सपांशंस ऑफ ऑल ऑफ देम are going to have the same value, we say that all of these expressions are going to be equal with each other. So that is how you write proof for sum number 11. And आगे बढ़ with sum number 12. In triangle ABC you need to prove this. तो LHS के साथ ही शुरू कर और sin a by 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला लिख ले। So that will be s minus b s minus c upon bc, रूट ओवर sin b by 2 के लिए आएगा s minus a s minus c upon ac, और साइन c बाई 2 के लिए आएगा s माइनस a s माइनस b अपॉन ए बी। s माइनस बी तेरा 2 बार आया, उसका स्क्वायर होगा और रूट लेगा तो सिर्फ बचेगा s माइनस बी। सेम थिंग विल हैपन विद s माइनस a एंड s माइनस c। तो ऊपर सिर्फ आएगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c, नीचे भी a b c 2 बार आया हुआ है, तो नीचे आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और रूट ले लेगा तो a b c आएगा। ऊपर नीचे s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर,
आई मीन ऊपर नीचे एस के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर, तो ये जो टर्म बना इसका रूट लेगा ना, तो दैट वुड बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब रूट नहीं है तो वी कैन से इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर। तो इसका टोटल आएगा न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का स्क्वायर अपॉन नीचे तेरे पास बचा एबीसीएस, एंड दैट इज योर आरएचएस। So yes, this is where I am done with covering everything I wanted to cover in this video. Thank you for watching.